Welcome back again. I'm Rajesh Mohan, and in this particular video, we will talk about NABARD Grade A 2023 exam. Your exam is going to be held on 16th October 2023, and we have around 35 days of serious preparation left. So through this video, I would be simplifying especially the phase 1 exam, okay, because I had already posted a detailed video on IT Week study plan when the notification hasn't come, and by that time also I had said that the exam will be held on 16th October only. Okay, so many of you may be following that particular study plan, so I would request you to continue with that only. But if you are the one who hasn't followed that particular plan, or the new one who has started recently, you can follow this particular plan for your phase 1 exam, and I assure you that if you are following this particular thing, then definitely it will help you clear the phase 1 exam for sure, especially the computer science or maybe the finance graduate, because I can see this year they have given the more and more vacancies for computer science and IT graduates. So there could be new interests, like new and more people would be filling the application in that domain. Okay, so for them also this particular video could be helpful. So watch this video till end, and आपको कोई भी दिक्कत होती है you can comment, you can ask in the comment box, or you can contact me on Telegram. ओके मेरा टेलीग्राम पर जो चैनल है वो @ब्रजेश मोहन के नाम से है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो और मुझे वहां पर मैसेज भी कर सकते हो इफ यू नीड एनी हेल्प। गाइस, बिफोर मूविंग अहेड, if you are the one who has started recently and not sure what to read, from where to read, and have around 4 hours a day, okay, if you are working, like those who are working professionals, they have lack of time. But if you have 4 to 5 hours in a day, and if you are determined to give those particular time to NABARD Grade A preparation for next remaining 70 to 75 days, then I will make sure you clear this particular exam. Okay, so if you fall under this category, then you can enroll in my course. In this particular course, it will cost you around 1699, means 1700 rupees. Okay, and that's minimal, because most coaching institutes, the big coaching institutes, are charging 10,000 or maybe 6 to 8,000 rupees. And I feel that if you enrolling on those courses, you won't be even completing 20% or maybe 30%, so it will be waste of money. But in this particular course, 1700 is a minimal amount that you can buy a course, right? So enroll under this particular course and see, and let me help you clear this particular exam. Or if you are someone who have already enrolled under the different courses, then you can buy this particular course, because you will somewhere need help in descriptive part also. And apart from descriptive, I am also providing PIB magazine under this particular course. And this particular, believe me, this particular magazine is a gold mine, because this particular magazine would be helping you not only in general awareness or in ESI or in ARD, but in phase 2 exam also. So overall, even in the recently held RBI Grade B exam, it was very much helpful, and I believe in NABARD Grade A it would be much more than the RBI Grade B. Okay, so definitely you can enroll under this particular course even if you are applying under computer science or finance, because you would somewhere help need in descriptive English part also. Or you can just simply buy the ESI or PIB summary magazine. Okay, subscription for that particular thing is also available. All the links have been given in the description or in the first comment box. From there you can click and join the course. Okay, so ये चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोग को। यहाँ पर टोटल 8 different subjects are there, and out of 8 subjects 5 subjects are non-merit section. Okay, here you have to just qualify the sectional cutoff. More than that you don't need एनीथिंग. ओके, यहाँ पर बस आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है। बाद बाकी जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है वो इससे तैयार होती है, ये 100 मार्क्स से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्कोर करने पड़ेंगे टू क्लियर द फेज 1 एग्जाम और टू अटेम्प्ट द फेज 2 एग्जाम. ओके, सो व्हाट इज द सेक्शनल कट ऑफ, व्हाट हैज बीन द सेक्शनल कट ऑफ? देखो, पेपर जो है वो आपको 2021 से चेंज हुआ है, पैटर्न आपको 2021 से चेंज हुआ है, तो हम लोगों को 2021 और 22 का ट्रेंड मेनली देखना चाहिए और कंपेयर करना चाहिए कि सेक्शनल कट ऑफ किस तरह से रहा है, किस तरह से वेरी किया है. तो ये वाला आपको 2022 का है और ये 2021 का है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सेक्शनल कट ऑफ है. ओके, दिस इज द सेक्शनल कट ऑफ एंड दिस इज द ओवरऑल कट ऑफ. दिस इज द ओवरऑल कट ऑफ. अब यहाँ पर एक चीज जो गौर करने वाली बात है, खास करके जो कंप्यूटर साइंस या जो फाइनेंस के
स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हो उनके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि कट ऑफ कितना कम था। ओनली इट वाज 14.75 फॉर यूआर, 14.50 फॉर कंप्यूटर स्ट्रीम। और यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है स्टार का मतलब क्या है कि ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर मेरिट लिस्टेड, हेंस लिस्ट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। मतलब जितनी वैकेंसी थी उससे कम ही जो है, जैसे कि वो लोग 10 गुना अगर सेलेक्ट करते हैं फेज 2 के लिए तो उतना भी नहीं हो पाया क्योंकि उतने ज्यादा लोग जो है वो सेक्शनल क्लियर नहीं कर पाए। सो ऑल दोज हु हैड क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द फेज 2 एग्जाम। सेम वाज द केस इन फाइनेंस एंड सेम वाज द केस इन कंप्यूटर साइंस ऑल्सो। EWS कैटेगरी में तो ये हाल था कि स्टूडेंट ही नहीं मिला, जितने भी स्टूडेंट थे वो सबके सब UR से क्लियर कर चुके थे, इसीलिए यहाँ पर जो है EWS में खाली रह गई सब कुछ। लेकिन अगर हम लोग 2021 का प्रीलिम्स देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा केस नहीं था। 2021 में आपको जो है फाइनेंस में 16.75 था और कंप्यूटर साइंस में 26.25 था। अब अगर 2023 की बात करें तो 2023 में क्या होगा, देखो 2023 में अगर चेंज सबसे ज्यादा दिखने को मिलेगा तो वो दिखने को मिलेगा कंप्यूटर साइंस में। क्यों? क्योंकि इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हैं और काफी क्वेरीज वगैरह आ रही है कंप्यूटर साइंस के रिगार्ड्स में, और मुझे लगता है कि अप्लाई करना भी चाहिए लोगों को, ज्यादातर लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो कंप्यूटर साइंस में आप जो है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये आपको एकदम से जो 50 नंबर के अराउंड कट ऑफ चला जाए, नो दैट वोंट बी द केस। It also depends on the difficulty of ESI, ARD and general awareness. So definitely यहाँ पर उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, भले ही कंप्यूटर साइंस में कितने भी अच्छे हो, यहाँ पर आपको कोई बेनिफिट उससे मिलता नहीं है आपके कंप्यूटर साइंस होने से। ओके, क्योंकि ये एक नया डोमेन है सबके लिए, यहाँ पर चीजें आपको कवर करनी पड़ती है। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर काफी ज्यादा चेंज आ जाएगा, ड्रास्टिक चेंज आएगा, बट एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 30 के अराउंड जो है रह सकता है। ओके, इट कुड बी अराउंड 30, तो आपको 30 नंबर तो कम से कम टारगेट करना चाहिए टू क्लियर द फेज 1 एग्जाम एंड टू सिट इन द फेज 2 एग्जाम। सेम will be the case in finance also as well as in computer science। तो आप 30 प्लस या 35 प्लस टारगेट करो। आई वुड से 35 प्लस वुड बी गुड, तो 35 प्लस को आप टारगेट कर सकते हो, मिनिमम जो है आप इतना टारगेट कर सकते हो। गाइस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरलिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर एंड फाइनेंस। जनरलिस्ट के लिए तो कुछ कह नहीं सकते हैं, डिफिकल्टी पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से कट ऑफ वेरी करता है। ओके, दैट आई वोंट से कि कितना रह सकता है, वो पेपर की डिफिकल्टी पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर एक और चीज होती है, काफी सारे लोग टेलीग्राम्स वगैरह पर बोलते हैं कि इतना सारा एप्लीकेशन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बट अगर आप नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखो तो नवाड में उतना ज्यादा एप्लीकेशंस गिरते नहीं है। ये 2022 का डाटा है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड, और ये इतने सारे स्ट्रीम्स के लिए आपको लास्ट ईयर वैकेंसी आए थे, इसमें से काफी सारे के लिए इस बार नहीं आया है। बट जैसे कि अगर बात करें हम लोग जनरल का आया हुआ है, फॉरेस्ट्री का इस बार भी आया हुआ है। ओके, फिर अगर बात करें फाइनेंस का आया हुआ है, कंप्यूटर का आया हुआ है, तो ये सब वैकेंसी इस बार भी आई हुई है। और जैसे कंप्यूटर आपको सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसी कंप्यूटर की है, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको जनरलिस्ट स्ट्रीम का है, और फिर आपको कंप्यूटर का है, देन द फाइनेंस स्ट्रीम का है। तो ये तीनों स्ट्रीम के अगर आप लोग देखें, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनरल स्ट्रीम में SC से इतने थे, ST के इतने थे, OBC, EWS एंड UR के इतने एप्लीकेशन डाले गए थे। कंप्यूटर साइंस में इतने आपको एप्लीकेशन थे, ये आप देख सकते हो। फाइनेंस के आपको इस तरह से एप्लीकेशन थे। तो इवन इफ वी कंसिडर दैट कि इस साल जो है थोड़ा ज्यादा लोग एप्लीकेशन डालते हैं कंप्यूटर साइंस में, बट ऐसा नहीं होगा कि ये आपको 10 गुना इंक्रीज हो जाएगा। सो इफ द लास्ट ईयर 1203 people had applied under the UR category, so it may be around 10,000 this year। ओके, मैक्सिमम 10,000 होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको ये 50,000 हो जाए, ये मैक्सिमम आपको 10,000 या 11,000 के अराउंड जा सकता है मैक्सिमम। आई वुड से इट वुड बी अराउंड 5,000 मैक्सिमम UR से, मैक्सिमम आपको 5,000 यहाँ पर जा सकता है UR से। इट वॉन्ट इंक्रीज मोर देन दैट, क्योंकि सबको पता है कि ESI, ARD वगैरह करना है, काफी कुछ है, तो दे वुड थिंक कि नहीं यार नहीं होगा, उस हिसाब से लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसे केस में ज्यादा इंक्रीज होने के चांस नहीं है, 5 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है नंबर ऑफ वैकेंसी, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस, नॉट इन फाइनेंस, नॉट इन जनरलिस्ट, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस। इस तरह की चीजें हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो आप जो इस चीज को ध्यान रख सकते हो। एंड अकॉर्डिंगली इसलिए मैंने बताया कि आपको टारगेट भी जो है मार्क्स कम से कम 35 प्लस टारगेट करने पड़ेंगे, एंड इट्स वेरी मच डूएबल। आपको अगर 35 नहीं आ रहा है फिर सोचो कि यार क्या ही कर रहे हो, 35 लाना तो यूं ही चुटकी में आपको 35 आ सकता है, इसमें कुछ ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं जो चीज आपको रिकमेंड करता हूँ, जो चीज बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत, उतना अगर आप नेक्स्ट 40 डेज के अंदर करते हो, नेक्स्ट 45 डेज के अंदर करते हो, तो मुझे लगता है कि इतना तो आप ला ही सकते हो, क्यों नहीं लाओगे। ओके,
तो ये है 5 वीक स्टडी प्लान। आगे बढ़ने से पहले और चीजें आपको क्या क्या कहाँ से फॉलो करना है ये बताने से पहले लेट मी फर्स्ट डिस्कस द 5 वीक स्टडी प्लान। गाइस उससे पहले आपको ये बता दूं कि एआरडी स्टैटिक वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, एआरडी स्टैटिक काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जनरलिस्ट स्ट्रीम वालों के लिए। किसके लिए? जनरलिस्ट स्ट्रीम वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बोलोगे सर जनरलिस्ट क्यों बोल रहे हैं? देखो कंप्यूटर साइंस वगैरह सब जो है वो यहाँ पर से अगर ऊपर ऊपर भी इसको कर लेता है ना, ओके, तो अगर वो यहाँ से 5 to 7 या मान लो लेट सपोज 6 to 8 मार्क्स जो है वो अगर स्कोर कर लेता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर साइंस और फाइनेंस ग्रेड्स, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर उस स्ट्रीम से आप यहाँ पर 6 to 8 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो तो भी आपके लिए जो है हो सकता है काम बन जाएगा। अगर आपने प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को अच्छे से कवर कर रखा हो, या आपने जो है करंट अफेयर्स वाला पार्ट को अच्छे से कवर कर रखा हो, एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट को अच्छे से कवर कर रखा हो, तो वो चीजें अगर आपने कर रखी है तो ये वाला पार्ट में अगर आप 6 to 8 मार्क्स भी लाते हो तो भी आपका काम बन जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लाना कितना है? 35 के अराउंड अगर मुझे लाना है तो ऐसे केस में मैं टारगेट क्या करूंगा कि आई वुड टारगेट 10 मार्क्स अंडर जीए। ओके, जीए में मैं 10 मार्क्स टारगेट करूंगा और रिमेनिंग में आपको जो है टारगेट करूंगा 12 to 13 मार्क्स इन ईएसआई एंड सेम 12 to 13 मार्क्स इन एआरडी ऑल्सो। तो इसी में मैं आपको स्लैश डाल के देता हूँ एआरडी। दोनों में आप अगर 12 to 13 करते हो तो उस कंडीशन में आप देख लो कि 35 हो गए आपके। ओके, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कितना मिनिमम तो आ ही सकता है। अब 12 to 13 ही क्यों आएंगे? ओके, लोगों के अगर जैसे मेरे खुद के 25 26 आए हुए थे, दोनों में, एक में 24 था दूसरे में 25 था, तो आपके क्यों नहीं आ सकते हैं? आपके भी आ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 16 to 18 मार्क्स भी लाते हो, एक में 16 ले आए और दूसरे में 18 ले आए, तो वैसे केस में भी आपका जो 40 प्लस हो जाएंगे, 42 प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको टारगेट करना पड़ेगा कि मिनिमम जो इतना मुझे लाना है, और ये मिनिमम मार्क्स लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो एक मैं आपको और डाटा दिखाता हूँ, ये वाला डाटा देखो। ओके, ये 2018 से लेकर 21 तक का है, 22 का मैंने इंक्लूड नहीं किया। 22 अभी कुछ ऐसा ही था, सिमिलर ट्रेंड था, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता, थोड़े बहुत ऊपर नीचे बताता हूँ। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, बताता हूँ कितना क्वेश्चन रहा था। ओके, तो अब ये डाटा देखो, ये इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू का है, ये किसका है? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चंस किस तरह से ट्रेंड रहे हैं। तो जो स्कीम्स है, यहाँ पर स्कीम्स को मैंने 2 भागों में बांटा हुआ है। एक फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम में कुछ मिनिस्ट्रीज एग्रीकल्चर कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ओके, फिशरी जो है वो वाला आपको चौथा मिनिस्ट्री हो गया। इस तरह से आपको, और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, 5 मिनिस्ट्रीज हो गए। रिसेंटली आपको कोऑपरेटिव वाला मिनिस्ट्री भी आया हुआ है और जल शक्ति भी है। ये 2 और अगर आप एडिशनल इंक्लूड कर लेते हैं तो इनके फ्लैगशिप स्कीम्स होते हैं जो कि आपको अम्ब्रेला प्रोग्राम, जैसे कि प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, ओके, पीएम आशा योजना, या राष्ट्रीय कृषि विकास आरकेवीवाई योजना, रफ्तार आरकेवी रफ्तार योजना। तो ये सब कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स होते हैं। भले ही ये न्यूज में हो ना हो, इस पर आपको क्वेश्चन पूछे आते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अच्छे क्वेश्चन आई मीन कि दे पिक क्वेश्चंस फ्रॉम गाइडलाइंस पीडीएफ। जब भी कोई प्रोग्राम्स लॉन्च होती है तो उस प्रोग्राम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा उसका एक गाइडलाइंस पीडीएफ आता है जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर आपको मिल जाती है। दीज गाइडलाइंस पीडीएफ्स आर ऑफ 40 पेजेज, 50 पेजेज, समटाइम्स 100 पेजेज। उसमें बताया जाता है कि कैसे प्रोग्राम के बारे में सब कुछ दिया जाता है, क्या प्रोग्राम है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कितना लेवल पर आपका देश पर मॉनिटरिंग की जाएगी, कितना फंडिंग होगा, किसको कितना पैसा दिया जाएगा, ये सारी चीजें उस गाइडलाइंस पीडीएफ में दी जाती है। और दे पिक क्वेश्चन, दे फॉर्म क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम देयर। ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको उतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने जो अपना स्कीम्स कॉम्पेंडियम बनाया जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत, उसमें मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किया वो डायरेक्टली गाइडलाइंस पीडीएफ से ही तैयार किया है। ओके, फ्लैगशिप स्कीम के लिए। तो काफी लोग इसके लिए अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि सर काफी अच्छा नोट्स है, एक तरह से बहुत ज्यादा खोजना पड़ रहा था, वो चीजें खोजनी नहीं पड़ रही है, एक ही जगह मिल चुका है। ओके, तो ये वाला चीज आप इसको जरूर कवर करना। ये 5-6 मिनिस्ट्री जो एआरडी के हैं वहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अराउंड 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्कीम्स का दूसरा पार्ट देखें तो कुछ ऐसे स्कीम्स होते हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, नए स्कीम्स हैं। जैसे कि रिसेंटली सरकार ने जो है नेचुरल फार्मिंग के लिए आपको एक अलग से जो नेशनल नेचुरल फार्मिंग के मिशन ही लॉन्च किया हुआ है। ये एक न्यू स्कीम है।
रिसेंटली सरकार ने ड्रोन के लिए अलग स्कीम लॉन्च किया है, उसी तरह कुछ स्कीम्स को एक्सटेंड किया गया है एग्रीकल्चर में ही। तो ऐसी जो स्कीम्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये स्कीम्स न्यूज में होते हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपको अलग अलग लॉन्च होते रहते हैं और वो हमेशा न्यूज में रहते हैं, जिसको मैं पीआईबी के माध्यम से कवर करता हूँ। अगर पीआईबी मैगजीन में देखोगे तो नाबार्ड का अलग सेक्शन बना हुआ है जहां पर कि एग्रीकल्चर वाला प्रोग्राम्स वगैरह मैं डिस्कस करता हूं। अगर आपने मेरा मैगजीन यूज किया तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो वो वाला जो होता है उस वाले पोर्शन से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहां से आपको 6 to 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो स्कीम से आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहता है वो 12 to 13 के लगभग क्वेश्चंस आपको ओवरऑल टोटल, अगर आउट ऑफ 40 मार्क्स की बात करो तो 12 to 13 आपको मार्क्स के स्कीम्स दिखते हैं आउट ऑफ 40 इन एआरडी सेक्शन। ओके, उसके बाद अगर बात करें तो एग्रीकल्चर न्यूज जो है वो भी आपको दिखता है, वहां से भी 2 to 3 क्वेश्चंस देखते हैं। ये फ्रिंज न्यूजेज होते हैं जो बेसिकली आपको न्यूज़पेपर में आता है, पीआईबी में नहीं आता है, न्यूज़पेपर में आता है, जैसे बिजनेस लाइन वगैरह में आपको दिखने को मिल जाता है। उसके अलावा जो कुछ स्टैटिस्टिक्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, प्रोडक्शन रिलेटेड डाटा, एमएसपी रिलेटेड डाटा, ये सब पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिखते हैं। इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डाटा फैक्ट्स है उसके बारे में बात होती है यहाँ पर, तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन दिखते हैं। देन कम्स द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, वहां से भी 2 क्वेश्चन आपको दिख जाता है। और जो एग्रीकल्चर का कोर स्टैटिक पोर्शन है उससे आपको 21-22 क्वेश्चन दिखते हैं। तो आप देख सकते हो स्टैटिक क्वेश्चन जो 2022 में था वो 14 to 16 था। न्यूट्रिएंट्स एंड डिजीज बेस्ड क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। ओके, agriculture trends related questions on scientific names were also asked. Some conceptual questions were lengthy. Okay, कुछ lengthy questions थे, कुछ disease पर questions थे, कुछ terms आपको जैसे कि यहाँ पर terms जो definition दे दिया जाता है और बोला जाता है कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो आपको जो terms है ऑप्शंस के रूप में दी जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चंस वगैरह दिया जाता है। ओके, सो ये जो था ये मेरा मकसद था इसलिए तो बताने का, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है और किस टॉपिक पर, ओके, किस एरिया पर फोकस करने से आपका जो है ये जो मैंने टारगेट बताया था, जो एक स्कोर का टारगेट मैंने लिया हुआ था, वो टारगेट आप कैसे अचीव कर सकते हो। कई सिमिलरली जो जनरलिस्ट वाले हैं अगर उनको भी मैं टारगेट दे दूं तो उनको 45 प्लस टारगेट करना चाहिए। 50 मान लेते हैं, 50 सेफ रहेगा, तो 50 प्लस अगर उनको टारगेट करना है तो आपको भी इसी तरह से देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन से मार्क्स उठा सकते हैं कि रिमेनिंग डेज जो है, जो 40 डेज बचा हुआ है उसमें से कौन से सेक्शन से आप मार्क्स उठा सकते हो, ये कुछ आपको टारगेट यहाँ पर करना चाहिए। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग ईएसआई में देखें, यहाँ पर जो है कल ही मोदी जी आपको आसियान समिट में पार्टिसिपेट करेंगे, ईस्ट एशिया समिट भी वहां पर होने वाला है, G20 भारत होस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि समिट से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पर बने हैं। लास्ट ईयर हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, समिट से उन्होंने 2022 में नहीं पूछा था, लेकिन उससे पहले काफी क्वेश्चंस बने हैं, ये चीज ध्यान रखना। देन कम्स द बैंक इन न्यूज, जो बैंकिंग के, और मैं बार बार बोलता हूँ कि बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स को काफी अच्छे से करना पड़ेगा, आगे रिकमेंड भी करूंगा। तो बैंकिंग न्यूज से आप देख सकते हो 10, 12, 15 इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड इट आल्सो इंक्लूड्स आरबीआई इन न्यूज। बैंकिंग न्यूज मतलब ये आरबीआई के न्यूज है, सर्कुलर जो है वो भी इंक्लूड करता है। देन द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे 3, 5, 2, 3 इस तरह से आप देख सकते हो कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से भी पूछा गया है। देन कम्स द रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, यहाँ से भी आपको 4-5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्कीम्स एक बड़ा सेक्शन होता है, स्कीम से आपको 14 to 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ईएसआई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेर फैक्चुअल, करंट अफेयर्स in nature from last 6 months, in-depth factual questions and budget, latest schemes, initiative, social justice and agri-based schemes were asked. तो 2022 आपको क्या पूछा गया, फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, इसलिए काफी लोगों के कम मार्क्स आए हैं, और करंट अफेयर्स पर, बैंकिंग इकोनॉमी करंट अफेयर्स पर बेस्ड थे, और लास्ट 6 मंथ के अपडेट्स पर आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे। बजट से भी क्वेश्चन था, लेटेस्ट स्कीम से क्वेश्चन था, सोशल जस्टिस या एग्रीकल्चर इन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर पूछे गए थे। ओके, ये आपका ट्रेंड है, इस तरह से आपका ट्रेंड रहता है क्वेश्चंस का। इसमें आप देख सकते हो कि कहां से आप कर सकते हो, कितना मार्क्स डुएबल है, और टारगेट एक टारगेट सेट करके जो है उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हो। रीजनिंग ये हो गया, क्वांट के बारे में मैंने बता रखा है, कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग किस तरह से था। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे अनुसार जो चीजें आपको लग रही थी वो मैंने बता रखा है। तो जैसे क्वांट के बारे में काफी सारे लोग स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो क्वांट में देखो 3 नंबर सीरीज था, 3 क्वाड्रेटिक, 1 DI एंड रेस्ट अरिथमेटिक था। तो ये दोनों भी अगर आप सही कर लेते तो भी आपका सेक्शन क्लियर होता, क्योंकि 6 मार्क्स यहाँ से हो गए। और क्वांट का कट ऑफ देखो कितना है, 2022 में
क्वांट का, लेट मी क्लियर दिस थिंग फर्स्ट। 2022 में क्वांट का कट ऑफ देखो कितना है, ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड के लिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड 3 मार्क्स है। अगर 2021 में बात कर ले, क्वांटिटी एप्टीट्यूड कितना था, 5 मार्क्स था। पेपर थोड़ा सा टफ हुआ, अरिथमेटिक वगैरह पूछा तो उन्होंने जो है कट ऑफ डिक्रीज कर गया क्वांट का, आप देख सकते हैं। ओके, तो 5 मार्क्स आपको 6 मार्क्स आ रहे थे, 2021 में 5 मार्क्स था, 2022 में 3 मार्क्स ही था, तो इस तरह से आपके हो सकते थे। सो डोंट स्ट्रेस आउट, ओके, चीजें डुएबल है। ज्यादा आपको मेरिट सेक्शन पर फोकस करना है, नॉन मेरिट में बस सेक्शनल क्लियर करना है, और उसके लिए आपको बस थोड़े थोड़े मार्क्स कर लाने हैं। कंप्यूटर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, मेनी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस वेर आस्क्ड मेनली फ्रॉम एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, शॉर्ट कीज, कंप्यूटर लैंग्वेज एंड डाटाबेस वगैरह से आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो चलो प्लान बात कर रहे थे, आखिर स्टडी प्लान है क्या, क्या क्या चीजें करनी है। तो ये चैप्टर्स आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अब देखो इसको करने का क्या तरीका है। तो कुछ यूट्यूब चैनल हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज के लिए आपको खास करके एक जो है, ओके, उस पर आपको अभी मैराथन सेशंस या जो डेली लेक्चर्स आपको आएंगे एमसीक्यूज के, एआरडी स्टैटिक के एमसीक्यूज के, आपको 5 डेज सीरीज, 5 डेज मतलब 5 एमसीक्यू डेज सीरीज वगैरह आपको आएगा। आना स्टार्ट हो चुका होगा ऑलरेडी, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो पिछले साल का 2022 वाला भी देख सकते हो। एक मैम थी लास्ट ईयर पढ़ा रही थी, काफी अच्छा पढ़ा रही थी। ओके, तो वो चीज आप देख सकते हैं। वहां से बेसिकली क्या होगा कि आप वो वीडियो देखो, उसके क्वेश्चन समझो। देखो मैं अभी इसलिए वो रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद वो चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ और मेरे पास रिसोर्सेस उस तरह से अवेलेबल नहीं है। डाउन द लाइन मे बी 2 years आफ्टर दैट मे बी लोग मेरे बारे में भी रिकमेंड कर रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए आपको जो है किसी और पर रिलाय करना पड़ सकता है क्योंकि मेरे पास वो रिसोर्सेस नहीं है, इसलिए मुझे दूसरों को रिकमेंड करना पड़ रहा है। लेकिन ये चैप्टर्स को आप प्रायोरिटी पर ले लेना और उसको आप वहां से एक बार वीडियो देख लोगे, वो क्वेश्चंस वगैरह समझ में आ गया तो आपको क्या होता है कि बेसिक आइडिया लग गया। 30 मिनट का 25 मिनट का वीडियो रहता है, उसको आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उससे आपको एक क्लियर कट आइडिया लग गया कि हाँ यार यहाँ से ये चीजें हो रही है, इस तरह से पूछी जा रही है। और फिर आपसे अगर नोट देखते, नोट्स वगैरह पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि अरे यार नोट्स तो ठीक है, फिर आपको चीजें समझ में आने लगती है क्योंकि आपने चीजें ऑलरेडी वहां से कनेक्ट कर पाते हो, क्वेश्चंस के माध्यम से आप चीजों को रिलेट कर पाते हो। इससे आपको इजियर रहता है चीजें समझने में और आप आसानी से जो है वो चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाओगे। दिस वुड बी अ स्ट्रेटजी विच यू कैन यूज टू कंप्लीट द एआरडी स्टैटिक पोर्शन बिट फास्टर। ओके, तो 5 वीक का अगर स्टडी प्लान, ये चैप्टर्स पर फोकस करना स्टैटिक पार्ट में। अगर उसी की बात करें तो हम लोग 5 वीक का स्टडी प्लान में जाए, फर्स्ट वीक में बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर है, सेकेंड वीक में आपको यूनिट 2 एंड यूनिट 3 रखा हुआ मैंने। यूनिट 4 जो है आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, उसको छोड़ दो अभी के लिए। यूनिट 5 है प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, काफी इंपॉर्टेंट है। एनिमल हस्बेंड्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट करते हो, इधर से भी आप 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो। ओके, उसके अलावा वीक 5 में आपको जो है फिशरीज एंड फॉरेस्ट्रीज ये वाला कवर करना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री से आपको काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गाइस फॉरेस्ट्री में आपको इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज वाला पार्ट भी देख लेना है क्योंकि क्लाइमेट चेंज पर काफी डिस्कशंस हो रहे हैं, तो ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और देखो आप 2 स्लॉट में बांट लो, जैसे कि मॉर्निंग आवर्स में स्पेशली दोज हु आर वर्किंग, तो आप स्लॉट्स बांट लो कि 2 स्लॉट में बांट लो। प्रिपरेशन आपको मॉर्निंग आवर में और दूसरा स्लॉट आपका इवनिंग आवर में आप कर सकते हो। तो जब ऑफिस से लौट कर आओ तो उस टाइम पर आप 2 से 2.5 घंटे दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है प्रिपरेशन करना पड़ेगा। पीआईबी बजट इकोनॉमिक सर्वे इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से मैंने दे रखा है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। तो मुझे लगता है इसको क्लियर कर देना चाहिए एंड डिज क्लियरली एक्सप्लेन एवरीथिंग, तो आप उसको जब बस गो थ्रू करो। वाई इट इज नॉट कमिंग। ओके चलो कोई नहीं है, आपको इरेज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ से कवर कर सकते हो। मैंने हर चीज को दिया हुआ, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, कंप्यूटर अवेयरनेस, सब कुछ का आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्यूआरई वगैरह पर भी टाइम दिया करना, जब भी टाइम मिले उसको आपको यूटिलाइज करना है। ओके, ये वाला कंप्यूटर वगैरह आप कवर किया करो इस तरह से। तो ये आपको एक स्टडी प्लान होगा जो आप फॉलो कर सकते हैं नेक्स्ट 5 वीक और 40 डेज के लिए। अब अगर हम लोग बात करें कि अलग अलग सेक्शंस के अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको फोकस करनी है, तो वो इस तरह से रहेगा कि एआरडी स्टैटिक
10 यूनिट है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कौन कौन से यूनिट इंपॉर्टेंट है। ARD करंट अफेयर्स कुछ खास है नहीं, PIB मैगजीन के अंतर्गत आपको ये चीजें कवर कर दी जाएंगी। एडिशनल न्यूज जो भी है वो सारा का सारा आपको एक ही बार में 20 से 22 पेज होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो वो आपको कवर कर दिया जाएगा। मे बी दिस मंथ के मैगजीन में या नेक्स्ट मंथ के मैगजीन में आपको वो चीज़ें आ जाएंगी। ARD प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी मैंने बता दिया, 2 भाग है, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी कि मैंने आपको बताया फ्लैगशिप स्कीम और स्कीम से न्यूज, दोनों अलग अलग से पढ़ना। आपको फ्लैगशिप स्कीम भी करना पड़ेगा और ARD स्कीम्स भी आपको न्यूज जो है PIB मैगजीन के माध्यम से वो दोनों करने पड़ेंगे। सो फॉर दिस यू कैन रीड PIB प्लस मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स कंपेडियम। ARD स्टैटिस्टिक्स की बात करें, रिपोर्ट्स इंडेक्सेस, यहाँ से मैंने जैसे बताया आपको दिखाया था कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सेंसस वाला पार्ट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वाले पार्ट के लिए आपको भी थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जैसे हैंडलूम सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, फॉरेस्ट सर्वे, लाइव स्टॉक सेंसस, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर पूछी जाती है। एग्रीकल्चर सेंसस वगैरह से आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको इस वाले पार्ट को भी करना पड़ेगा। सो ओवरऑल ARD के अंतर्गत ये 4 से 5 सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ESI स्टैटिक एज सच आपको कुछ नहीं करना है अभी के लिए, पूरा का पूरा कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। ये आपको फेज 2 एग्जाम में काम आता है, मेनली आपको फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में पूछा जाता है, तो अभी के लिए आप इसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। आपको फेज 2 से पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। मेजर फोकस आपको ESI करंट अफेयर्स पर करना है, और ये कहाँ से करोगे मैंने आपको दिखा रखा है, यहाँ पर देख सकते हो। आपको बैंकिंग इकोनॉमी PDF आता है अफेयर्स क्लाउड का, हर महीने अलग से जारी होता है, तो वो वाला PDF आप जो है फॉलो कर सकते हैं। ओके, वो वाला PDF आप जो है लास्ट 3 to 4 मंथ का फॉलो कर सकते हो प्रीलिम एग्जाम के लिए। प्रीलिम में आपको जो है इधर से रहना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, जो पुराने क्वेश्चंस होंगे उसको छोड़ सकते हो आप, लेकिन एटलीस्ट 3 to 4 मंथ का आप टारगेट करो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आप कोशिश करो कि आप उसको पढ़ सको। 60 पेजेस का होता है आपको ये PDF, तो 60 into 4 आपको अराउंड 200 पेजेज आपके पास बच जाते हैं। अब मैं 200 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको अगर देखोगे तो PIB मैगजीन जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उस मैगजीन में RBI एंड सेबी के सर्कुलर्स को मैं अच्छे से कवर कर रहा हूँ, डिटेल में कवर कर रहा हूँ। तो वो वाला अगर 10 to 15 पेजेस यहाँ से हटा दोगे तो ऑटोमेटिक सी बात है पेज और भी कम हो जाएंगे। ओके, तो ये वाला चीज आपको यहाँ से करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात। उसके बाद ESI प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, इसके लिए आप PIB मैगजीन पर ही कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर देख सकते हो कि सारे के सारे प्रोग्राम्स जो थे वो खास करके लेटेस्ट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव से ही पूछे गए थे। जो भी स्कीम्स न्यूज में है उससे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए आपको ये चीज़ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर फोकस क्या करोगे, आप PIB मैगजीन को ही फोकस करोगे ESI के लिए, प्रोग्राम्स पार्ट के लिए। ओके, तो यहाँ से आपका ये वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। सेम चीज जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस आपको 20 क्वेश्चंस है, 14 to 15 क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, बाद बाकी क्वेश्चंस आपको कुछ भी पूछ देते हैं वो लोग, रैंडम क्वेश्चंस होता है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, AC का पॉकेट PDF आप फॉलो कर सकते हो। खास करके जो नेशनल अफेयर्स, स्टेट करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल सबमिट्स, MOU, अपॉइंटमेंट, ऑबिटरीज, स्पोर्ट्स, ये सब जो होते हैं यहाँ से भी आपको 6 to 7 क्वेश्चन या 7 to 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। Out of these 14 to 15 questions, you can expect around 50% questions, around 7 to 8 questions directly from banking and economic current affairs, जो ऑलरेडी आप ESI पोर्शन के लिए पढ़ रहे हो, जो आप ऑलरेडी ESI पोर्शन के लिए पढ़ रहे हो वहीं से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट देयर विल बी अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस जो आपको MOU, सबमिट्स, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, ये सब से रहेगा। और जनरली 3 मंथ का क्वेश्चंस रहता है, 3 मंथ्स के अपडेट ही रहते हैं, उससे बाहर नहीं पूछते वो लोग। ओके, तो वो चीज आप या तो अफेयर्स क्लाउड के पॉकेट PDF से कर सकते हो, या आपको अड्डा 24/7 का मंथली मैगजीन आता है द हिंदू रिव्यू, वहां से कर सकते हो, या कोई सा भी मैगजीन, ऑली बोर्ड का बोल्ट है, या अलग अलग मैगजीन्स आते हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो उसको करने के लिए। बजाबते की मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि आपको बैंकिंग इकोनॉमी जो अफेयर्स क्लाउड का थोड़ा सा डिटेल्ड आता है उसको आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि वही आपको ESI के करंट अफेयर्स, ESI वाला पोर्शन में भी 40 मार्क्स में हेल्प करने वाला है। तो आई एम क्लियर विद दिस थिंग कि क्या चीज आपको फॉलो करनी है, सोर्सेस आपको आई होप क्लियर होगा। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, तो मुझे लगता है कि सभी चीजें मैंने बता रखी है। अगर अभी भी कोई डाउट है स्टडी प्लान से रिलेटेड या कुछ भी आपको, तो वो चीज आप जो है मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, वहां पर मैं आपके डाउट्स को एड्रेस कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।
टाटा बाय बाय। एंड अगर आप कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो आप जरूर इनरोल कीजिए। ओके, अभी भी काफ़ी सफिशिएंट टाइम है, चीज़ें कवर कर सकते हैं हम लोग, डुएबल है। लेकिन मैं आपको फिर से वही बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो कि कोर्स खरीद करके जाओ आप, बस मुझे पैसा देकर जाओ, भूल जाओ। ओके, आप अगर कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना चाहते हो, 4 से 5 घंटे आप देना चाहते हो, यू आर डिटरमिन्ड टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, देन ओनली बाय दिस पर्टिकुलर कोर्स। दैट जस्ट अ जनरस रिक्वेस्ट आई वुड लाइक टू डू। ओके, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए अगर आप तैयारी करने में इच्छुक नहीं हो, या आप अगर पूरा का पूरा टाइम डिवोट नहीं करना चाहते हो। ओके, सो अगर आप डिवोटेड हो, देन ओनली बाय दिस पर्टिकुलर कोर्स। So I hope I'm this clear with this thing. So thank you very much for watching this video. I hope we will meet in the next video. Take care.